master class 2 for plutonium and fortium. ठीक है, तो so yesterday we we completed the state. We also looked at some life cycle methods, right? We also basically saw how functional components work, how class components work. Okay. So today what I'll do is I remember that I have described to you about the conditional rendering, but still in the material also it is there. So we will just go through that once quickly. Okay. What is conditional rendering? Okay. So open this. Yeah. Okay. 40 years. Sorry. Take it. Okay, so I told you that there are two ways in which you can create your conditional stuff, right? So either you can use if else to do that, right? That is very simple. Or generally we use this, right? Like for example, if something is true, right? Like I want to say if 2 plus 2 is equal to 4, then render that what function approx, okay? Else write something else, right? Like what do you say? React rocks or something. Okay. So because 2 plus 2 is equal to 4, this part is true, so this one is getting rendered. Okay, let's make this 5. Okay, so this one will be false. This one is false, so this one will be rendered, right? It is very simple. Now if you want to render only, like you want to render something only when it is true, right? Only when this is true. For example, you want to render a function of prox, but you don't want to render anything when function of 2 plus 2 is not equal to 4, right? This one is false. So what you can do, you can just put here null, right? If you put a null, nothing will be rendered, right? Let's say if I make it 5, nothing will be rendered, right? But if you don't want to do that, what you can do, instead of writing this, what you can do is you can use this ampersand symbol, right? Double ampersand symbol, and it will render when this one is true, right? And it will not render anything when it is not true. That we can check. If I make this something else which is false, so it will check that, okay, is it true? No, it is not true, so it will not render anything, right? So we have completed this using if else, using ternary operator, using double ampersand. Everyone is clear how we did this? Yes or no? Let me know in the chat, then we'll move forward. Yes. Okay. So I have around, how many people? I have 50. So I have 58 people, and I only got one response. So how is this fair, guys? You only tell me. I have completed my day of work. Then also I'm having a little bit of energy that I'm teaching you. तो आप लोग भी एनर्जी दिखाओ ना, तो मेरे को पढ़ाना भी अच्छा लगेगा. ठीक है? Cool. And also, like the most important part is I will know that you guys are understanding. ठीक है? फिर मेरे को पता नहीं चलता. Cool. ठीक है? Thank you for responding. So now what we'll do is we'll be understanding how to loop over something. ठीक है? How to loop over something. So let's say I have a I have an array of fruits. ठीक है? I have an array of fruits. For example, let's say mango. ठीक है? हाँ, सबको अनम्यूट करने से क्या होगा कि बहुत शोर मच जाएगा, तो इसलिए हमने चैट ओपन किया. ठीक है? ओके, मैंगो, एप्पल, ठीक है, बनाना और पाइनएप्पल. These are some fruits that I have. Now what I want to do is I want to show these fruits here. Okay, so let's say I can write here, let's say H2. Okay, H2 I can write my favorite fruits. Okay, my favorite fruits, and I want कि इसके नीचे I have all these fruits. Okay, so how can I do that? Very simple. What I can do is I can do this manually, right? Do this manually. And can anyone tell me how to access the array elements? It is very simple. In all the language it is same. Okay, I have not talked about loop. Okay, I'm just telling that if you don't know about loops and all,
how you can do that, right? You will do fruits of 0, right? Yeah, array index, correct, using array index. So you will do fruits of 0, fruits of 1, right? And you will go on fruits of 2, fruits of 3. But this is like time taking, right? We only have 4 elements, so we can do this, right? We only have 4 elements, so we can do this. But imagine we had thousands of array, like in an array we had thousand of elements, right? In the list we have thousand of elements, or lot of elements, right? We don't want to do like this. What we can do is we'll use a looping method. Okay, so if you know JavaScript, right, you have already learned JavaScript, so you must know about something called map, right? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है, let me know in the chat. Is a JavaScript function. Okay, so what it does, okay, I'll just tell you a simple example. Okay, let's say we have a numbers array. Okay, and we have 1 2 3 4 5. Okay, what it will do, and what I want is I want to multiply everything by 3. Okay, just an example. Okay, so what I will do is I will do nums dot map. Okay, it takes in a function, it takes a function, and what I'll do, I'll say that please return num into 2. Okay, so हर एक number के लिए sorry, num into 3, right? I told I'll multiply everything with 3. So what it will do is it will multiply every number with 3, and the new array it will return. Okay, so I can store that new array inside a new variable called new numbers or something. Okay, so we'll use that same function here. Okay, let's see how we'll do that. What I'll do, I'll use curly bracket. Why I'm using curly bracket? Very simple. I told you thousands of times. Any JavaScript related stuff you have to do inside this return, right? Inside the JSX. If you want to do any JavaScript stuff, you have to use the curly bracket, right? Very simple. So what I'll do fruits dot map, right? It takes in a function. Okay. Now here I'll get a single fruit. Okay, and here I can just display inside a p tag or whatever. Okay, however you want to display, you can display the fruit. Okay, I made the return. Okay, you can display the fruit. So we have mango, apple, banana, and pineapple. Okay, so advantage of this is, let's say we have many fruits also, right? Like let's say I have grapes also, so I'll get the grapes here also, right? So you don't have to do it manually, right? This is how we do it. Is everyone clear? Yes or no? Yes. Okay, but one thing interesting that I'll show you, if I open the console and I refresh, right, you see there is a warning, right? There is a warning. Let us see what is this warning saying. This warning is saying key, let me copy this one. Okay, why is it not copying? Okay, so the warning is saying each child in a list should have a unique key prop. ठीक है, इसका क्या मतलब है? It is telling that you are returning a you're returning something in a list, right? Like we have a list, and उससे we are calculating the JSX, right? Which is this. It is telling that जो भी आपने return किया है, you have to have some key, right? See, written that you have to have some key which should be unique, right? It should be unique for all the elements. ठीक है, तो जब भी हम कुछ मैप करते हैं, ठीक है, एनी टाइम, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल. So anytime we do some mapping, right, we do some mapping and we want to render multiple things, we should always have something which is unique to everyone. इन पांचों में से, right, in these 5 what do you say, fruits, what is unique that you can see? इनमें से यूनिक क्या है? ये जो नाम है, right, this name is itself unique, right? Mango is different from apple, different from banana, right? These all are unique. So what you can do, you can put key equal to the fruit, right? The जो भी actual जो है, ठीक है, जो actual fruit का name है, right? And if I refresh, you see there is no error, right? So it is saying that the root जो आपने return किया है, जो root वाला element है, इधर तो हमारा एक ही element है, right? तो वो जो element में आपको key equal to fruit डालना है, ठीक है? मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि इंडेक्स भी डालो, इंडेक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? एक्चुअली आपको अगर पता होगा, जो मैप जो है ना, इट टेक्स, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो एक्चुअली नंबर है, सेकंड आर्गुमेंट इज द इंडेक्स, ठीक है? तो एक्चुअली अगर हम चाहें तो हम इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है? मैं अगर चाहूंगा तो इसको इंडेक्स करूंगा, और इंडेक्स क्यों नहीं कर सकता भाई? देखो 0 है, मतलब इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 है ना, सारा का सारा तो डिफरेंट है, लेकिन आप अगर इंडेक्स करोगे एरर तो चला जाएगा, बट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ यूजिंग इंडेक्स एज की. मैं आपको, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लोगों को, ठीक है?
तो आपका जो कहाँ गया, हाँ इधर ही तो लिखा ना, यूजिंग इंडेक्स एज कीज एंड एंटी पैटर्न इन रिएक्ट, ठीक है, आपको जो रिएक्ट का डॉक्स में ही ना, यूजिंग इंडेक्स एज की, ठीक है, आपको रिएक्ट का डॉक्स में ही, ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, इंडेक्स सर्च करूंगा तो, हाँ देखो, वी डोंट रिकमेंड यूजिंग इंडेक्स इफ द ऑर्डर ऑफ आइटम्स में चेंज। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ, ठीक है, हमको इंडेक्स क्यों नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, अभी तो मेरे पास ये वाला यू नो दिस फ्रूट्स आर देयर, ठीक है, ठीक है, एक 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 तो पहले आपको याद है क्या, मैंने जब कल वर्चुअल डॉम पढ़ाया था, आई टॉक्ड अबाउट डिफिंग, राइट, कैसे वो वर्चुअल डॉम में इट कंपेयर्स कि क्या चेंज हुआ है, बस उसी को चेंज करता है, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो काफी यू नो फास्ट होता है और काफी परफॉर्मेंट होता है। यू ऑल रिमेंबर दिस वर्चुअल डॉम? चैट में बताओ यस, ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट, मतलब क्यों हम इंडेक्स नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ये पता है, ठीक है, मान लो मैं अभी इंडेक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग इंडेक्स, और मेरा जीरो में क्या है, जीरो में मैंगो है, ठीक है, मैं भी ऐसे, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो मेरा कमेंट में ये जीरो है, ये वन है, ये टू, दिस इज थ्री, एंड यू नो ये ग्रेप्स वाला फोर है, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, ग्रेप्स वाला फोर है, ठीक है, ये है इसका इंडेक्स। लेकिन मान लो यू नो आई वांट टू चेंज इट, यू नो आइदर वो यूजर खुद चेंज कर रहा है कुछ बटन बटन क्लिक करके, या फिर मैं खुद आके इसको चेंज किया, ठीक है, ये बाद में मान लो चेंज हो गया, कुछ और फ्रूट्स का नाम बताओ, कुछ फ्रूट्स का नाम, अच्छा जैक फ्रूट, ठीक है, मैंने कुछ और ऐड कर दिया, तो अभी देख रहे हो क्या हो गया, मैंगो तो जीरो में है, चलो ठीक है, लेकिन अभी जो एप्पल वन में था अभी वो टू में आ गया, ठीक है, बनाना थ्री में था, बनाना टू में था, अभी थ्री में आ गया, राइट, अब ये पाइनएप्पल अभी फोर हो गया, ये ग्रेप्स अभी फाइव हो गया, राइट, द ऑर्डर हैज चेंज्ड, ठीक है, ऑर्डर हैज चेंज्ड। तो अभी जो रिएक्ट के लिए ना, उसके लिए ये मतलब ये तो मैंगो तो सेम है, ठीक है, रिएक्ट के लिए ये वाला तो सेम है क्योंकि इंडेक्स जीरो पे है, ये वाला उसको और एक बार पूरा रेंडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो देखा कि भाई मेरा इंडेक्स में यू नो सारा कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, अगर हम इंडेक्स यूज करेंगे इट विल सी दैट ओके दीज ऑल आर चेंज, तो इनको वो सारा का सारा फिर से रेंडर करेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, हमने तो बस ऐड किया जैकफ्रूट को, तो बस वही रेंडर होना चाहिए ना, मतलब वही री रेंडर होना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हेन वी आर यूजिंग इंडेक्स, व्हाटएवर इज चेंजिंग, राइट, इंडेक्स में इंडेक्स जब हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं और कुछ बीच में ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सारा कुछ मतलब इसके पीछे जो भी एडेड है सारा कुछ चेंज हो रहा है, राइट, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो इसीलिए वी शुड नॉट ट्राई टू यूज इंडेक्स, वी शुड ट्राई टू अवॉइड इंडेक्स एज मच एज यू कैन। लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ यूनिक है ही नहीं, तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद इंडेक्स, ठीक है। अगर हम रिएक्ट के डॉक्स में देखें तो देखो क्या लिखा है, वी शुड नॉट यूज लाइक वी डोंट रिकमेंड यूजिंग इंडेक्स इफ द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स में चेंज, ठीक है। तो पहले मेरा ऑर्डर क्या था, पहले मेरा ऑर्डर था ये, राइट, इसको इंडेक्स करने देते हैं, हाँ पहले मेरा ऑर्डर ये था ना, पहले मेरा ऑर्डर ये था, ठीक है, पहले मेरा ऑर्डर ये था। अगर आप श्योर हो कि आपका एप्लीकेशन में कैसे भी करके आपका ऑर्डर चेंज ही नहीं होगा, ठीक है, यही रहेगा, तो आप इंडेक्स यूज करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप यू नो यू आर यूजिंग जैसे जैसे हमने से फॉर एग्जांपल आपने यूजर का एक एरे है, ठीक है, आपका यूजर का एरे है या फिर कोई भी एरे है, और यू नो द कस्टमर हु इज यूजिंग इट, यू नो दे कैन राइट समथिंग एंड प्रेस ऑन एंटर, और आपका वो फ्रूट्स एरे में ऐड हो जाएगा, या फिर कुछ भी, ठीक है, कुछ भी करके अगर आपका जो एरे है वो चेंज हो पा रहा है, तो आप इंडेक्स मत यूज करो, ठीक है, वही दे आर ट्राइंग टू टेल इस। Is everyone clear? You can use index, yes, but if possible, use a different thing, right? So here, you know, we can see that okay, fruit is a very good alternative, right? इसमें सारा का सारा जो नेम है it is different, right? And अभी अगर मैं अभी जैकफ्रूट टाइम मतलब इसको ऐड करूंगा ना, ठीक है, रिएक्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों मैं बता रहा हूँ, रिएक्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो देखेगा कि अच्छा ये तो सेम मतलब वो कैसे कंपेयर करता है, वो कंपेयर करता है ये की यूज करके, राइट, वो कंपेयर करते हैं की यूज करके, तो चेक करेगा क्या, अच्छा हाँ ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये सेम है, क्यों, क्योंकि की में तो मैंने वही दिया था, तो चेक करेगा कि हाँ ये सेम है, तो इसको लीव कर दो। द जैकफ्रूट इज समथिंग व्हिच इज एडेड न्यूली, राइट, ये अभी ऐड हुआ है, तो इसको वो बस रीरेंडर करेगा। इज एवरीवन गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस, ठीक है, कूल, ठीक है, सो यू नो ट्राई टू अवॉइड इंडेक्स इफ यू कैन, बट या इफ यू हैव डोंट हैव एनीथिंग एल्स यू कैन यूज इंडेक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपके पास यू नो इफ यू वांट टू यूज इंडेक्स यू कैन, बट अगर उससे अच्छा कुछ ऑल्टरनेटिव है, राइट, हियर वी हैव यू नो दीज ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, राइट, दीज आर यूनिक वैल्यूज बेसिकली,
सो आई एम ट्राइंग टू यूज दैट ओनली, राइट, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द इंडेक्स, ठीक है, वही रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन में भी वही लिखा है, ठीक है। दिस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट परफॉर्मेंस इश्यूज में कॉज इश्यूज। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप पूरा ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी लिखा है, ठीक है, कूल, ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया, जो लूपिंग, ठीक है। और आप जब रिएक्ट एप्लीकेशन बनाओगे ना, आप तो आपको आपको मेरा हर दिन, मतलब जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन आप बनाओगे, आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज करना पड़ेगा, जो मैप बेसिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट। ओके, समवन इज आस्किंग वो एरर एक्चुअली आ क्यों रहा था, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, कि हमने तो देख लिया, ठीक है, ये एरर आ रहा था, हमने इसको फिक्स भी कर दिया की ऐड करके, लेकिन ये एरर आ क्यों रहा था, राइट। ये एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मेरे को देखो, तुमको और मुझे दिख रहा है कि हाँ ये एक एरे है जो कि फ्रूट्स का है, ठीक है, मैं इधर ऐड करूंगा, इधर इसको रिमूव करूंगा, वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ इट, राइट। सो रिएक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, राइट, रिएक्ट हैज टू आइडेंटिफाई which items have been changed, या फिर कोई if you're adding something, if you're removing something, react has to keep a track of, right, why, because मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, राइट, बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, जो वर्चुअल डॉम जो डिफिंग एल्गोरिथम होता है, इट हैज टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड, राइट, इट हैज टू कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट हैज चेंज्ड। Yes or no, guys? Tell me in the chat. Yes. So it has to, मतलब उसका अगर ट्रैक करना है कि क्या चेंज हुआ, तो उसको ट्रैक रखना पड़ेगा ना, कि मतलब क्या द यूजर व्हाट हैज एडेड, व्हाट हैज रिमूव्ड, और क्या चेंज हो रहा है उसको ट्रैक करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको कुछ की चाहिए, राइट, इट हैज टू हैव सम की, ठीक है। तो सो हियर वी हैव दिस फ्रूट्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है पता है, नॉर्मली हमारा डेटा जो होता है वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हमारा नॉर्मली डेटा जो होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हमारा डेटा एरे तो होता है, लेकिन ना उसका बस एक इट डजंट हैव ओनली वन थिंग, राइट। तो जैसे इसके पास कुछ आईडी होगा, ठीक है, कुछ भी रैंडम आईडी, और सम वैल्यू है, फिर कुछ नेम होगा, ठीक है, मैंगो, फिर इसके पास भी कुछ आईडी होगा, ठीक है, और कुछ नेम होगा, ठीक है, बनाना, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये जो फ्रूट है ना, इसका जो आईडी है इसको की में यूज कर देंगे, और डिस्प्ले के लिए इसका नेम यूज कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको जो डेटा होगा उसके पास हमेशा कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। जैसे इधर हमारे पास आईडी है, ऊपर हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने इसको ये यूज कर लिया। लेकिन मान लो अगर आपके पास वो भी कुछ यूनिक नहीं है, तो आप इंडेक्स पे यूज कर सकते हो, अगर आप श्योर हो कि आपको वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर नाउ कि एक्चुअली हमने क्यू नहीं यूज किया, राइट। सो या क्यों हमने, मतलब सॉरी, कीज यूज किया, क्यों ये एरर आ रहा था। इज एवरीवन क्लियर? वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। आपको आपको जो ठीक है, अभी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है सर? कैन यू प्लीज रिपीट लाइन नंबर 18? लाइन नंबर 18, 18 में तो कुछ है नहीं है, मैं आई जस्ट स्टार्टेड द div, राइट, दिस इज नथिंग, राइट, ओके ओके। लाइन नंबर 22, ओके 22। हाँ, तो इसमें कौन सा पार्ट, ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? ये व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिटर्निंग अ पी टैग, मतलब हर एक, देखो ये कहाँ पर है, ये जो फ्रूट्स के अंदर है ना, मतलब सॉरी जो मैप के अंदर है ना, ये वाला, ये रिटर्न स्टेटमेंट ये मैप के अंदर है। तो हर एक फ्रूट के लिए एक नया नया पी टैग रेंडर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको h2 कर दूं, ठीक है, तो हर एक पी टैग के लिए एक एक h2 रेंडर होना चाहिए। सॉरी सॉरी, क्या गलती कर दिया मैंने, हाँ सॉरी, ठीक है। हर एक पी टैग के लिए हर एक फ्रूट्स के लिए क्या होगा, एक h2 रेंडर होना चाहिए, हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक पी टैग के लिए एक स्पैन होना चाहिए रेंडर, ठीक है, स्पैन हो रहा है इसलिए एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक चीज के लिए क्या होना चाहिए उसको मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पी रेंडर हो, ठीक है, तो मैं पी रख दिया। और की मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है, हमने क्यों यूज किया। एंड दिस वन, कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, क्या आप हर मैं अगर चाहता हूँ कि हर एक एरे एलिमेंट के लिए मैं सौम्य लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको सौम्य लिखूंगा, ठीक है। जितना भी एलिमेंट होगा, ठीक है, वो बस सौम्य ही दिखाएगा, ठीक है, जो भी होगा वो सौम्य ही दिखाएगा। मान लो एप्पल होगा, फिर भी सौम्य दिखाएगा, लेकिन ये थोड़ी कुछ दिस ऐड एनी मीनिंग, राइट। वी वांट टू शो वट एवर इज प्रेजेंट, राइट, डेटा जो भी है वही दिखाना चाहता हूँ। तो वो मैं फ्रूट्स डॉट नेम से, मतलब फ्रूट डॉट नेम से मिल जाएगा मेरे को। I'll do fruit dot name. Is this clear now, Bittu? Yes, okay, cool. Now one of the most important things is called form
फॉर्म डेटा इनपुट, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक फॉर्म है, ठीक है, हमने कल थोड़ा सा ये किया था, लेकिन हम इसको अच्छे से आज समझेंगे, ठीक है। फॉर्म अगर इफ यू वांट टू हैव अ फॉर्म और उसमें आपको कुछ करना है, ठीक है, तो इसको क्लीन रखने के लिए और एक कंपोनेंट बनाते हैं form.js, ठीक है। और import react from react function form, ठीक है। ये सब तो सेम है, सेम इन एवरी कंपोनेंट, ठीक है। अभी के लिए एक div, ठीक है, और इसको इंपोर्ट करते हैं इधर, और इसको इधर ही दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है। तो अभी ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एक्सप्लेन यू हाउ द फॉर्म हाउ वी ऐड इवेंट हैंडलर्स एंड ऑल, ठीक है। तो जो भी फॉर्म डेटा होता है रिएक्ट में, वो हमारा वी वांट टू कीप इट इन द स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। पहले तो हम चलो फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हमको किस किस चीज के लिए एक फॉर्म चाहिए, ठीक है। लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ okay, we are creating a, what do you say, अच्छा फॉर्म, ठीक है। एक असेसमेंट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इसका h2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मान लो, हाँ ठीक है, हमको क्या करना है कि एक बंदे का हमको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो उसका नेम भरना है, ठीक है, इनपुट, ठीक है, उसका नेम आ गया, उसका मैथ्स में मार्क्स भरना है, फिजिक्स में मार्क्स भरना है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब दिखेगा, मैं इसको स्टाइलिंग कर दूंगा, ठीक है। और क्या करना है, और उसका ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। इस सारे को एक डिव में डाल देते हैं, और इस यू कैन यूज अ सेक्शन और व्हाटएवर, ठीक है। मैं अभी आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इन अ डिव, ठीक है। ये हमारा फंक्शन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा फॉर्म है, और एक लास्ट में बटन होगा जिसको वो क्लिक करके द जो भी द पर्सन हु इज टेकिंग द असेसमेंट ही कैन सबमिट द मार्क्स, ठीक है, सबमिट, ठीक है। तो अभी whatever I'm typing it is visible, लेकिन we are not keeping track of anything, right? We are not keeping track of anything. इसके लिए we'll use the use state hook, ठीक है। तो here we'll create how many states? We have four things, right? Like we have three things, oh sorry, four things. So we'll create four number of states, ठीक है, equal to use state, ठीक है। First we want a state for the name, तो name set name, ठीक है। By default it is empty, so हम उसको empty रखना चाहते हैं, ठीक है। 4 बना दिया मैंने, ठीक है। ये जो मार्क्स और सेट मार्क्स है, राइट, दीज आर इंटीजर्स, राइट। इसको सेट मैथ्स मार्क्स, ये वाला मैथ मार्क्स कर देते हैं, ठीक है। दीज आर इंटीजर्स, सो इसको मैं इनिशियली 0 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये वाला फिजिक्स का मार्क्स होगा, मैथ्स की जगह फिजिक्स का मार्क्स होगा, राइट। और ये भी 0 से स्टार्ट होगा, एंड दिस वन इज द ईमेल, ठीक है। ओके, email is also a string, right? So this is how we do it. Now what we'll do, we'll set up this, okay? So हमने ऑलरेडी कल कर चुका है, ठीक है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन अ बेटर वे, ओके। तो इनपुट में हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू देते हैं, ठीक है। जो वैल्यू होगा यू ऑलवेज सेट इट टू दी स्टेट, ठीक है, जो स्टेट वेरिएबल है, तो ये होगा नेम,
इधर क्या होगा, वैल्यू यू विल बी इक्वल टू द मैथ मार्क्स, ठीक है। और तो ये टाइप इक्वल टू नंबर होगा, राइट, दिस वन तो यू शुड ऑलवेज नो, टाइप इक्वल टू नंबर, ठीक है। सेम फॉर द फिजिक्स मार्क्स ऑल्सो। और इसका एक टाइप इक्वल टू ईमेल होगा, इसका ईमेल का नेम का टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, तो इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं है, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू मैथ मार्क्स, इसका भी एक वैल्यू इक्वल टू फिजिक्स मार्क्स होगा, ठीक है। इसका भी वैल्यू इक्वल टू ईमेल होगा। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस? फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी वायर अप द वैल्यू, यस और नो, क्लियर? चैट में बताओ गाइस। यस, ओके। सेकंड थिंग इज ऑन चेंज, ठीक है। अभी तो हमने सेट कर दिया, ठीक है। अभी ना हमको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने ऑन चेंज जो है वो सेट नहीं किया, ठीक है। वैल्यू सेट कर दिया, लेकिन चेंज होने पे क्या होता है हमने सेट नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए हर एक के ऊपर ऑन चेंज लिखेंगे, ऑन चेंज इक्वल टू, ठीक है। और ये पूरा सिमिलर होता है, ठीक है। वो देगा एक इवेंट, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। और जो भी इवेंट मिलेगा उससे कुछ टारगेट डॉट वैल्यू मिलता है हमको, ठीक है। तो सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसका सेटिंग अप। इनपुट इसका हो गया, क्या बोलते हैं, नेम का हो गया। अभी सेम चीज वी कैन जस्ट पुट इन ये मैथ्स का मार्क्स, ठीक है। इसमें बस ये सेट मैथ मार्क हो जाएगा। सेम चीज वी कैन पुट इन दी फिजिक्स मार्क्स, ठीक है। ये वाला हो जाएगा सेट फिजिक्स मार्क्स। सेम थिंग वी कैन पुट इन द ईमेल वाला थिंग, दिस विल बी सेट ईमेल, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज सेट अप, ठीक है। नाउ whatever the user is inputted, right, like if the user is inputted Soumya, maths में he got 100, quiz में he got 88, ठीक है। email is soumya@gmail.com, okay। if you want to see this, right, like obviously आप लोग ये सब भर क्यों रहे हो, right, why are you filling this up, you know, इसको सबमिट करके you want to make some API calls, मतलब इसके साथ कुछ करना चाहते हो, right, whatever the user is inputted, all of this is now in your state, why, because you have put everything, right, value equal to state, और जो भी वो चेंज कर रहा है वो आप उस सेट में स्टेट कर रहे हो, सॉरी स्टेट में सेट कर रहे हो। Are you guys seeing this? Yes or no? You're getting right? तो हम क्या करेंगे, वो बटन क्लिक करने पे अभी तो कुछ नहीं कर सकते, राइट, वी डोंट हैव अ व्हाट इज एपीआई और समथिंग, वी कैन जस्ट डू ऑन क्लिक console log करते हैं, राइट, whatever the user has inputted we want to console dot log it, so console log name, राइट, email, और ये email होगा, ये इसका मैथ का मार्क्स होगा, और ये फिजिक्स का मार्क्स होगा, ठीक है। सो जो भी उसने इंटर किया है वी वांट टू console log and see it, ठीक है। सो आई हैव एंटर्ड सौम्या 100 99 gmail.com, okay, so I click on submit, I can see that, okay, हाँ, जो भी मैंने भरा था everything is coming correctly, right, clear, yes or no? yes, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई हैव अ स्मॉल, ओके, महविश आफरीन, गुड क्वेश्चन। हम ये वाला वी विल कवर दिस, ओके। वन वन क्वेश्चन, देखो जिस जब भी आप कोई व्हेनेवर यू हैव एंटर्ड इन एनी फॉर्म, राइट, आपने जब भी कुछ एंटर किया है तो आपने देखा होगा सबमिट करने के बाद ये ऐसा रहता नहीं है, राइट, इट क्लियर्स एवरीथिंग, राइट। आपने सबमिट कर दिया तो वो मतलब वो जो बंदे के पास चला गया, राइट, लाइक द पर्सन कैन डू एनीथिंग विद दिस ईमेल, लाइक यू हैव सबमिटेड द फॉर्म, बट आफ्टर दैट इट इज एम्प्टी, राइट, सो दैट आप और एक बार अगर आपको भरना है यू कैन फिल इट अप, राइट। आर यू गाइस लाइक यू आर अवेयर ऑफ दैट, लाइक यू हैव सीन दैट, यस और नो? यस, राइट। तो इसको कैसे कर सकते हैं, वेरी सिंपल, एक छोटा सा चेंज करके करेंगे, बट बताओ कौन बता सकता है कि इसको कैसे कर सकते हैं? लेट मी नो इन द चैट। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सबमिट होने के बाद, मतलब मैं कुछ भरने के बाद ये क्लिक करूंगा तो ये सब एम्प्टी हो जाए, मतलब जो वापस जो थे ना ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, राइट, ये एम्प्टी हो जाना चाहिए, वो कैसे करेंगे? यस, ऑन क्लिक में तो करेंगे ही, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ज्योति, ऑन क्लिक में ही करेंगे, इधर ही लिखेंगे कोड, ठीक है। नहीं, ऑन चेंज में नहीं करेंगे सकीब, ऑन चेंज में क्यों करेंगे? वो जो ऑन चेंज का मतलब क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन चेंज का मतलब, ऑन चेंज का मतलब है
whenever the user is typing something, मैं अभी जो टाइप कर रहा हूँ ना, अभी देखो एक एक लेटर जो टाइप कर रहा हूँ मैं, एक दो जो भी लेटर टाइप कर रहा हूँ, उधर ऑन क्लिक रेंडर मतलब ऑन क्लिक एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी थोड़ी करना है हमको एम्प्टी, अभी नहीं करना है ना। तो जो भी यूजर टाइप करा वो फट से रिमूव हो जा रहा होगा, वो तो थोड़ी करना है हमको, वो नहीं करना है। जब वो बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा तब हमको करना है कि हाँ सबमिट हो गया, अभी सारा का सारा एम्प्टी कर दो। यस, सबने सब जो बोल रहे हैं ऑन क्लिक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, समीर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऋतिक नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ये सब हमने ये नहीं करेंगे हम। ऋतिक सॉरी, समीर इज एब्सोल्युटली राइट। और कुछ और एक आंसर चाहिए मेरे को, फिर आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, क्योंकि आप 5 मिनट के लिए ट्राई करना। तो कैसा करते हैं ज्योति, हाउ हाउ या जीवन, यू आर ऑल्सो करेक्ट। रिसेट करेंगे, वो सब तो सही बोल रहे हो, वो तो वर्ड्स में बोल रहे हो ना, लिख के दिखाओ कैसे करेंगे। रिसेट जो करेंगे कैसे करेंगे, मान लो मेरे को नेम को रिसेट करना है, मैं कैसे करूंगा नेम को रिसेट। यस, सौम्यदीप इज करेक्ट। नहीं, बटन यूज करके, अरे बटन तो यूज करके करेंगे ही, ऑन क्लिक के अंदर ही लिखूंगा मैं कोड, ठीक है, वो तो श्योर हूं मैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मतलब क्या लिखूंगा मैं इधर। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये वाला हो गया, ठीक, ऑन क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद मेरे को जो भी करना है, ठीक है, अभी तो कंसोल लॉग कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे को इफ आई वांट टू बेसिकली मेक एन एपीआई कॉल, जो भी करना है आई विल डू राइट, जो भी करना है मैं कर दूंगा। उसके बाद आई विल डू सेट नेम एम्प्टी, फिर सेट फिजिक्स मार्क्स एम्प्टी, सॉरी जीरो राइट, सेट मैथ मार्क्स जीरो राइट, सेट ईमेल जीरो एम्प्टी। ठीक है, अब हो गया। अभी देखो कैसे काम करेगा, मैं अभी नेम लिखा, मार्क्स में कुछ एंटर किया, ठीक है, ईमेल में कुछ एंटर किया @gmail.com, ठीक है, ये एंटर किया, सबमिट करूंगा, देखो मेरे पास आ गया, एंड एवरीथिंग इज रीसेट। सबको दिख रहा है हाउ इट हैपेंड। और एक बार करते हैं, सौम्या 199 समथिंग @gmail.com, ठीक है, सबमिट करूंगा, जो भी एपीआई कॉल होना था वो हो गया, और वो एम्प्टी हो गया राइट। अभी अगर यूजर को और कुछ एंटर करना है, रोहित 10 मार्क्स 101 मार्क्स, पता नहीं कैसे, rohit@gmail.com, ठीक है, ये भी एपीआई कॉल चला गया, लेकिन वो फिर से एम्प्टी। तो बार बार यूजर हैज द एबिलिटी टू बेसिकली फिल अप दिस फॉर्म अगेन एंड अगेन। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, वी हैव एन असाइनमेंट राइट व्हिच इज गिवन टू अस बाय फंक्शन अप। तो ये वाला असाइनमेंट मैं अभी स्क्रीन पे डालूंगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम, ठीक है, और आपको वो ब्रेक में कहीं जाना नहीं है, आपको वो सोचना है, ठीक है। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू कोड, अगर आपको कोड करना है तो कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई वांट इज यू थिंक, ओके, आई एम नॉट आस्किंग यू द फुल कोड, आपको मेरे को बस बोलना है कि कैसे करना है, ठीक है। आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस आफ्टर आई कम, लेकिन आपको सोचना है, और आपको अगर करना है कोड, यू कैन डू इट हाउ एवर यू वांट, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो अब क्या करना है, यू टू क्रिएट एन यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ठीक है, इतना कुछ ये सब छोड़ दो, ठीक है। मान लो आपके पास अ, बस फर्स्ट नेम है, ठीक है, और जेंडर है, ठीक है, बस इतना है, ठीक है, नेम और जेंडर, ठीक है, ये दोनों करना है। और एक चेकबॉक्स होगा जिसमें द यूजर विल यू कैन आस्क द यूजर टू रिसीव एन ईमेल्स और नॉट। आपने देखा होगा ना कि एक चेकबॉक्स होता है, एक छोटा सा जो होता है, जिसपे आप टिक कर सकते हो, फिर उसको हटा सकते हो, फिर टिक कर सकते हो, देखे हो ना, चेकबॉक्स बोलते हैं। अरे आप तो एचटीएमएल पढ़ चुके हो राइट, या चेकबॉक्स यू नो। सो दिस 3 फील्ड्स यू हैव, ठीक है, नेम, जेंडर और दिस प्रोफाइल पिक्चर को छोड़ सकते हो, ठीक है। और जब वो सबमिट करेगा फॉर्म, आपको चेक करना है कि सारा का सारा फील्ड पॉपुलेटेड है कि नहीं, राइट। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि इफ दी ऑल दी फील्ड्स आर पॉपुलेटेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने नेम लिख दिया और ये वाला टिक कर दिया, लेकिन जेंडर उसने छोड़ दिया, राइट, इट शुड नॉट हैपन। या फिर अगर उसने नेम कर दिया, जेंडर भी भर दिया, लेकिन ये टिक नहीं किया, उस वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सारा का सारा है, देन ओनली अलाउ हिम टू सबमिट, अदरवाइज शो एन एरर, राइट। और जब सबमिट हो जाए, जैसे ही अभी हम कर रहे थे, कंसोल लॉग करना है आपको, ठीक है, कूल, ठीक है। अभी व्हाट आई विल डू इज, आई विल स्टार्ट अ टाइमर,
5 मिनट्स। ठीक है, आपको वैसे क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अच्छा ठीक है, आपको ये टैब में दिख रहा है ना टाइमिंग, ठीक है, आप ये टैब में देख रहे हैं ना टाइमिंग, ठीक है, आप ये वाला कर सकते हो। एक्चुअली आई थिंक 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। हु ऑल हैव डन इट, टेल मी इन द चैट। Who all are able to do it? ठीक है, जिनको भी टाइम नहीं, मतलब आई नो 5 मिनट्स माइट बी लिटिल बिट लेस, लेकिन हु ऑल थिंक यू कैन डू इट? Vakshas, Abhay, send some code. Hmm. Yes, Abhay looks fine, but आपने वैल्यू नहीं सेट किया है, ठीक है, वैल्यू सेट कर देना इसको। आई थिंक चेकबॉक्स का जो वैल्यू होता है वो ट्रू होता है, राइट? नहीं, HTML में नहीं करना था ना, आपको रिएक्ट में करना था, हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं। और बताओ, और किसने किया है? ठीक है, लेट्स ट्राई इट। ओके, हम ट्राई करते हैं। क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है, इसी को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे इसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। क्या क्या चाहिए था हमको? नेम तो चाहिए था, विच इज करेक्ट, ये दोनों उड़ा देते हैं हम, लेट अस डिलीट दिस टू, ठीक है, और ये दोनों उड़ाते हैं। तो क्या क्या था हमारे पास? हमारे पास तो नेम था और एक था जेंडर, राइट? अब ये जेंडर को ना हम इसमें दिखा सकते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसी को, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। वी कैन शो जेंडर इन अ सिलेक्ट टैग, राइट? सिलेक्ट टैग मतलब ड्रॉप डाउन जैसे होता है, GNDR, ठीक है, जेंडर। हाँ, रेडियो बटन ऑल्सो वी कैन यूज, करेक्ट, ठीक है, रेडियो बटन भी यूज कर सकते हैं, जेंडर, वी कैन यूज व्हाट डू से, ओके ठीक है, रेडियो बटन यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, मेल फीमेल, ठीक है, ठीक है, मेल फीमेल और अदर भी एक कर लेंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन है, तो वी कैन यूज द रेडियो बटन ऑल्सो, राइट? तो इधर इनपुट, ठीक है, और रेडियो बटन के लिए इनपुट क्या होता है? टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और क्या बोलते हैं, वैल्यू इक्वल टू जो भी यूजर ने इनपुट, मतलब इफ द व्हाटएवर द यूजर हैज इनपुटेड एज द वैल्यू, राइट? और क्या करेंगे, गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, एक्चुअली एक तो हुआ नहीं, 3 होगा ना। हाँ, एक का नाम होगा मेल, ठीक है, तो इसका वैल्यू थोड़ा अलग होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है मेल, मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, मेल, दिस स्टैंड्स फॉर फीमेल, ठीक है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, फीमेल, और ये वाला होगा हमारा अदर, OTHER, ठीक है। एंड अभी हमारे पास और एक क्या था, चेक बॉक्स, राइट? ठीक है, इसको कैसे वायर अप करेंगे वो तो देखेंगे, ठीक है, और एक था लास्ट में, ठीक है, डू यू एग्री
टू समथिंग समथिंग, क्या था, मार्केटिंग ईमेल्स, ठीक है, रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, क्या आपको रिसीव करना है मार्केटिंग ईमेल्स, और इधर हम क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स रखेंगे, राइट, चेक बॉक्स रखेंगे, इनपुट टाइप क्या होता है, चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप करो चेक बॉक्स, एंड चेक्ड, चेक्ड जो होता है, अगर मैं इसको ट्रू करूं तो वो ट्रू होगा, अगर मैं इसको फॉल्स करूं तो चेक नहीं होगा, राइट। तो ये चेक्ड से हम खेलेंगे, ठीक है। इधर मैं अगर इसको चेक्ड इक्वल टू ट्रू करूं तो ये वाला इधर डॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा, इधर भी हम चेक्ड पे ऊपर खेलेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ये दोनों, अच्छा हमारे पास 3 ही है ना, इसको भी हटा देते हैं अभी। व्हाट विल डू, वी हैव एडेड अ नेम के लिए तो हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी, लेट अस ऐड फॉर अ जेंडर, ठीक है, जेंडर, सेट जेंडर, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट हमारे, हमको पता नहीं है क्या जेंडर है, ठीक है। देन वी हैव मार्केटिंग, सेट मार्केटिंग, मार्केटिंग, और ये क्या होना चाहिए, ये ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, राइट। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है, इसलिए वो व्हाट डू से, इसलिए वो टिक नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगा तो ये टिक हो जाएगा। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस, क्यों मैंने ऐसा स्टेट बनाया, इज एवरीवन क्लियर, यस, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, व्हाट विल डू इज, ये वाला हो गया, हाँ पहले ये वाला करते हैं, मार्केटिंग ईमेल्स वाले को चेंज करते हैं, राइट। मैं हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू इक्वल टू क्या डालेंगे, वैल्यू बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, चेक्ड, चेक्ड इक्वल टू क्या डालें, देखो नेम वाला तो वायर अप हो चुका है ऑलरेडी, राइट, नेम इज ऑलरेडी डन, ठीक है। इसके लिए जो चेक्ड है, रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, चेक्ड इक्वल टू क्या, ये वाला मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये अभी फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको फॉल्स किया है। अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तो ये चेक हो जाएगा, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहे, और जब बंदा उस पर क्लिक करे तो ही वो ट्रू रहे, राइट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमने उसको बस वैल्यू किया, मतलब जो चेक किया, उसको ऑन चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, वी ऑलवेज डू वैल्यू और ऑन चेंज, मतलब जो टेक्स्ट होता है हम वैल्यू और ऑन चेंज करते हैं, जब ऐसा कुछ रेडियो होता है या फिर चेकबॉक्स होता है हम चेक्ड और ऑन चेंज करते हैं, राइट, ऑन चेंज, ठीक है, ये ऑन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें ना हमको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, मतलब जब चेंज होगा इसका क्या मतलब होगा, उस पर कोई क्लिक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेट मार्केटिंग को उल्टा कर देंगे जो भी मार्केटिंग है अभी, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक होगा, अनक्लिक करूंगा तो अनक्लिक होगा, ठीक है। दिस वन इज एवरीवन क्लियर, हाउ आई डिड दिस वन, लेट मी नो इन द चैट, यस, ठीक है। अब लेट अस सी द दिस वन, ठीक है, दिस वन, इसके लिए हमको, इसका तो वैल्यू तो सेट है, राइट, इसका वैल्यू सेट है। अब इसका चेक्ड होगा कि नहीं ये हमको पता कैसे चलेगा, चेक्ड इक्वल टू, ये भी ट्रू और फॉल्स ही लेता है, राइट, दिस इज आल्सो टेकिंग अ बूलियन, राइट, इसको अगर ट्रू करेंगे तो ये ट्रू होगा, उसको अगर ट्रू करेंगे तो वो ट्रू होगा, राइट, ये इसका भी ऐसे ही होता है। लेकिन इस इधर एक हमको चेक करना पड़ेगा कि ये मेल, मतलब ये मेल वाला टिक होना चाहिए अगर हमारा जो जेंडर है वो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मेल है, ठीक है। अगर जेंडर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मेल है इन स्ट्रिंग्स तो वो ये चेक होगा। सेम ये वाला चेक्ड होगा अगर हमारा ये वाला इक्वल टू फीमेल होगा, और ये वाला चेक्ड होगा अगर ये वाला हमारा इक्वल टू अदर होगा, ठीक है। अभी के लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मान लो मैं इसको मैनुअली मेल करूंगा तो देखना ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं अदर करूंगा तो मैनुअली ये वाला हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं ना वो बंदा मतलब मेल फीमेल अदर क्या है, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी रखेंगे। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस, यस, नो, यस। अब इसका ऑन चेंज थोड़ा यूनिक होगा, ठीक है। ऑन चेंज क्या होगा, ऑन चेंज, राइट, इसका ऑन चेंज हम क्या करेंगे, ई, एक बार ना हम
इसको ऐसा करते हैं, सेट जेंडर, राइट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब अगर इसको कोई क्लिक कर रहा है या फिर इफ समवन इज क्लिकिंग ऑन इट, इसका मतलब हम उसको सेट करना चाहते हैं वैल्यू में, राइट। सेम चीज हम इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे, ठीक है। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, इधर इसमें हो रहा है या फिर इसमें हो रहा है या फिर इसमें हो रहा है। इट इज वर्किंग फुल्ली, दिख रहा है सबको, यस और नो? इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? लाइक आई हैव वायर्ड अप एवरीथिंग, आई वायर्ड अप दिस वन, आई वायर्ड अप दिस वन, आई वायर्ड अप दिस वन। किसी को कुछ डाउट है? यू कैन आस्क मी। ओके, नो, क्लियर, ठीक है, यू कैन वेट। ठीक है, ओके, एवरीवन इज क्लियर। अब क्या होगा, अब पहले तो कंसोल लॉग करके देखते हैं कि मैंने जो लिखा है, मतलब कोड सब काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। नेम और क्या, एक है जेंडर, और बंदे ने मार्केटिंग वाला सही से भरा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखूंगा, नेम में लिखूंगा हेलो, फिर मैं लिखूंगा मेल और ये टिक, सबमिट, ठीक है। इसको हेलो नहीं करके हेलो टू करूंगा, फीमेल करूंगा, इसको टिक नहीं करूंगा, हेलो टू फीमेल फॉल्स, ठीक है। ये काम कर रहा है सही से। अब क्या करना है मेरे को, ये काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। पहली बात तो आफ्टर द यूजर क्लिक्स ऑन सबमिट, हमको ये सारा कुछ डिलीट करना है, ठीक है। वो तो हमको पता है कैसे करना है, वो चलो कल कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्लियरिंग ऑल इनपुट्स, क्लियरिंग ऑल इनपुट्स, ठीक है। कुछ नहीं करना हमको, बस सेट नेम को एम्प्टी करना है, राइट। सेट जेंडर को भी एम्प्टी करना है और सेट मार्केटिंग को फॉल्स करना है, राइट। दिस इज डन। तो बंदा जब क्लिक करेगा सबमिट पे, एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट वन थिंग इज, वी हैव नॉट येट डन, ठीक है। वन थिंग वी हैव नॉट येट डन, हमको ये करना है, वैलिडेट वेदर ऑल फील्ड्स आर पॉपुलेटेड और नॉट, इफ नॉट शो एन एरर, ठीक है। हमको क्या करना है, शो एन एरर का बाद में देखेंगे, ठीक है। शो एन एरर का बाद में देखेंगे, पहले हमको ये करना है कि अगर इफ द यूजर हैज नॉट इंक्लूडेड, इफ द यूजर हैज नॉट पुट एवरीथिंग, हम उसको सबमिट नहीं करने देंगे, राइट। मतलब जो भी एपीआई कॉल होगा, जो भी होगा, वो नहीं करने देंगे अगर उसने कुछ भी छोड़ा है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक वे इसका है कि आप इसको मैंडेटरी रिक्वायर्ड कर दोगे, ठीक है, रिक्वायर्ड कर दोगे, ठीक है। तो लेकिन ये बस काम करेगा अगर ये वाला फॉर्म इनपुट होगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा। अब हम इसको रिएक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है। द वे टू, मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछा क्यों गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आप इसको रिएक्ट में कैसे करें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे चेक करूंगा बताओ मेरे को? अगर चेक करना है सबमिट पे क्लिक करने पे कि एक्चुअली सारा कुछ भरा है कि नहीं, मैं कैसे करूंगा? कौन बताएगा चैट में? यूजिंग रिएक्ट। ये बटन ऑन क्लिक पे जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, मतलब जब सबमिट पे, मतलब ये वाला बटन पे क्लिक करूंगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर सारा कुछ भरा है तो ही आगे चलो। तो ये सब जो लाइंस रेंडर होंगे, ये जो रन होंगे, वो रन होंगे अगर हमारा सारा कुछ भरा है, देन ओनली। अगर कुछ भी छूटा है तो नहीं होंगे। ये मेरे को वो करना है, दिस आई वांट टू शो, दिस आई वांट टू चेक। किसका वैल्यू चेक करेंगे सिकेंद्र? नहीं, कोड लिखो ना, फील्ड का वेल्ड का मत बोलो, कोड लिखो। अदर्स? नो आइडिया? वेरी सिंपल गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाने का वैसा है ही नहीं, इज वेरी 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 सिंपल। नहीं, ये रिक्वायर्ड वाले का मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड वाला नहीं करेंगे। बताओ। यूजिंग रिएक्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है। कंडीशनल एंटरिंग क्यों करेंगे? नो वन? मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं आपको एग्जांपल अभी अभी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ कंडीशन लिखना चाहता हूँ इधर, ठीक है, और आसान कर रहा हूँ। मैं इधर इफ में के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ,
अगर वो ट्रू होगा तो ही ये सारा कुछ चलेगा, ठीक है, जो भी होना चाहिए था। अगर एल्स होगा तो मैं एरर दिखाऊंगा, ठीक है। एरर कैसे दिखाऊंगा वो बाद में देखेंगे। मेरे को जानना है ये इफ के अंदर क्या रहेगा, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा देन ओनली रन ऑल ऑफ दिस। तो जो आपको एपीआई रिक्वेस्ट करना है वो करो, सारा को क्लियर करो, ठीक है। मेरे को वो करना है। मेरे को कैसे, लाइक हाउ विल आई नो कि सारा कुछ भरा है कि नहीं, बताओ। यस रिचर्ड, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप थोड़ा कोड में लिखो ना, ये सिंगल सिंगल वर्ड का आंसर क्या होता है। नो बिट्टो, नॉट करेक्ट। आई थिंक ये वाला आपको मतलब बोल देना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आई नो आपने ये कुछ किया नहीं होगा कभी ऐसा। इफ नॉट एम्प्टी, एम्प्टी क्या होता है। ये महविश राइट, महविश आफरीन, जो भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, लेकिन हम नल पे चेक नहीं करेंगे, हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग पे चेक करेंगे, राइट। वो नल नहीं है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भरा नहीं है बंदे ने तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे कि अगर नेम इक्वल टू मतलब सॉरी नॉट इक्वल टू नल है, मतलब जो एम्प्टी है, एंड जेंडर नॉट नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, एंड मार्केटिंग नॉट इक्वल टू फॉल्स है, देन ओनली आगे बढ़ो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। नेम अगर एम्प्टी नहीं है, जेंडर अगर एम्प्टी नहीं है, और मार्केटिंग अगर फॉल्स नहीं है, ठीक है। रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये सारा फॉल्सी वैल्यू होते हैं, ठीक है। फॉल्सी वैल्यू, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, ये सबको। सेम ही चीज, अगर आप लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब सेम ही चीज है, ठीक है। इसका मतलब अगर नेम है, जेंडर है, मार्केटिंग है, देन ओनली आगे बढ़ो, नहीं तो इसको एरर दिखाओ, ठीक है। अभी के लिए एरर के लिए मैं एक अलर्ट या फिर हाँ अलर्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अलर्ट क्या बोलते हैं, एरर, ठीक है। प्लीज एंटर एवरीथिंग, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ नहीं भरा हूँ, मैं अभी सबमिट पे क्लिक करूंगा, मेरे को अलर्ट दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या अलर्ट स्क्रीन पे, यू गाइस एबल टू सी द अलर्ट। यस, ठीक है, आपको दिख रहा है, राइट। तो मान लो मैं ये भर दिया, इसको भी क्लिक करूंगा, अलर्ट दिख रहा है, ठीक है। दो भर दिया, क्लिक कर रहा हूँ, अलर्ट दिख रहा है, प्लीज एंटर एवरीथिंग दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तीनों भरेंगे देन ओनली सबमिट होगा। देखो मैं तीन भर दिया, सबमिट करूंगा, गैप देखो नीचे आ गया, एपीआई कॉल हो गया, क्लियर भी हो गया, ठीक है। अगर उसने मान लो वो बंदे ने दो भरा है, ठीक है, और वो क्लिक कर रहा है सबमिट, एरर तो दिखाएंगे, ठीक है। क्या आपको क्लियर करना चाहिए, कौन बताएगा क्लियर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि उस बंदे ने तो पूरा भरा ही नहीं है, उसका काम क्यों आधा, मतलब वो आधा भरा है, उसको क्यों खत्म कर रहे हो। लाइक द यूजर शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू फिल अप द अदर स्टफ, राइट। सो आप क्या करेंगे, इसको भी यू विल नॉट क्लियर इट, राइट। तो हमने जो क्लियरिंग वाला काम है वो वाला इफ के अंदर किया है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे वांटेड टू चेक, ठीक है। आपको ये वाला ऑन क्लिक पे आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करूंगा, देन इट विल गेट सबमिटेड एंड दिस विल बी डन, ठीक है। सो या वी आर ऑलमोस्ट एट, लाइक नॉट ऑलमोस्ट, वी आर एग्जैक्टली एट द टाइम। व्हाट आई विल डू इज आई विल, इसका कोड मैं इधर डाल दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ऐप डॉट जेएस में भी जो हमने जो कोड किया है वो भी कोड है, ठीक है। प्लस ये जो असाइनमेंट का भी कोड है, सारा कुछ कोड इज इन दिस लिंक, एंड दिस लिंक आई विल शेयर विथ यू इन द चैट। गिव मी 1 second. इतने टाइम में यू कैन लेट मी नो द फीडबैक ऑफ दिस टू क्लासेस, इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग और समथिंग, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताओ। ओके, थैंक यू एवरीवन, ठीक है, थैंक यू।